ایسا ہی کچھ بدین میں اس وقت دیکھنے میں آیا جب مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف ترقی پسند رہنما فاضل راہو کی برسی پر اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. ان کی تقریر سے کیا دلچسپ پہلو سامنے آئے آپ بھی دیکھیے. بھائی بس یار آپ بس نعرے بازی بند میری تقریر ذرا سن لیں. بھائی بس یار آپ غارت کی ہے. میاں صاحب کی تقریر ہو اور نعرے نہ لگے ممکن ہی نہیں. سننے والے تقریر سے زیادہ نعروں میں دلچسپی رکھتے ہیں. اسی لیے میاں صاحب کو ہیڈ ماسٹر بننا پڑتا ہے اور سارا نزلہ حاضرین پر گرا دیا. بھائی بس یار آپ بس کر دیں, ان کو منع کرے بھائی. لیکن لوگ نعرے لگا لگا کر انہیں اور چڑھاتے رہے. بری بات. بھائی سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ چلے جائیں تو جی بھر کے نعرے لگائیں. بھائی آپ بس نعرے بازی بند میری تقریر ذرا سن لیں, پھر نعرے بازی آپ کرتے رہنا. لیکن میاں صاحب کو اپنے تمام چاہنے والوں کا خیال بھی بہت ہے. کوئی انہیں دیکھ نہ پائے یہ انہیں برداشت نہیں. تھوڑا سا پیچھے ہٹیں, وہ لوگ نہیں دیکھ پا رہے. آپ کونا چھوڑیں, پیچھے بیٹھ جائیں ادھر بیٹھ جائیں. اشاروں کنایوں میں میاں صاحب نے کچھ لوگوں کو پیغام بھی دے ڈالا. آپ 4-5 لوگ تھوڑے سے ناراض ہوں گے لیکن ہزاروں لوگ خوش ہو گئے ہیں. نزلہ چاہے کسی پر گرے لیکن میاں صاحب کا ہدف کون ہے یہ سب کو پتا ہے اور عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. بھائی بس یار آپ بس نعرے بازی بند میری تقریر ذرا سن لیں. بھائی بس یار آپ اب سرکٹ ہاؤس ملتان میں مسلم لیگ نون کا ایک اجلاس ہو رہا تھا جس میں رانا اور ہاشمی گروپ میں تصادم ہوا ہے. گالم گلوچ کے بعد کارکن ایک دوسرے پر تھپڑوں کی بارش کر رہے ہیں. جی ہاں, یہ وہ مناظر ہے جب مسلم لیگ نون کا اجلاس ہو رہا تھا اور یہااں پر کارکنوں کی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی اور ایک دوسرے پر تھپڑ برسانا شروع ہو گئے یہ کارکن اور گالی گلوچ سے ان لوگوں نے کام لیا. جی ہاں, یہ رانا گروپ ہے یہاں پر اور جب ہاشمی گروپ ہے, ہاشمی گروپ کا تعلق مختوم جاوید ہاشمی سے. یہ دو دھڑے ہیں جن کا تعلق ہے تو مسلم لیگ نون سے, لیکن اس اجلاس کے دوران یہ دونوں دھڑے جو ہیں آپس میں کھل کر سامنے آ گئے اور تصادم ہوا. یہاں پر منہ ماری کی گئی, گالم گلوچ ہوئی اور بات یہاں تک نہ رکی بلکہ تھپڑ تک جڑ دیے گئے ایک دوسرے کو. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا چند ہفتے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی یہاں پر جب امتیاز صفدر بڑائچ پہنچے تھے تو ان کے آپس کے جو کارکن تھے اسٹوڈنٹس اور ان کے سیاسی رہنما ان کے درمیان بھی کچھ ایسی ہی صورتحال یہاں دیکھنے کو ملی تھی. آج یہ واقعہ پیش آیا مسلم لیگ نون کے دو گروپوں کے درمیان یہاں پر ملتان سرکٹ ہاؤس میں. بات کر لیتے ہیں کہ آخر وجہ کیا بنی. شریف جو یہ کیا وجہ بنی مسلم لیگ نون کے کارکن آپس میں گتھم گتھا ہو گئے؟ جی یہاں پر مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا تھا جس میں جلئی جو صدر ہے اس کے لیے نامینیشن یہاں پر مانگی گئی تھی, جس میں رانا گروپ جس کو ایم این اے رانا محمود الحسن جو جس کی سربراہی کرتے ہیں وہ ان کے لوگ بھی یہاں پر موجود تھے اور جنید ہاشمی کے جو ہاشمی گروپ ہے ان کے لوگ بھی موجود تھے. اور یہاں پر جو تصادم کی صورتحال پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ دونوں گروپوں کی طرف سے الگ الگ جو صدر ہے اس کی نامینیشن دی گئی, جس کی وجہ سے جو ہے ایک دوسرے کے درمیان میں وہاں پہ شروع ہو گئی, ایک طرف پہ الزام تراشی شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بات پھر وہاں تک محدود نہ رہی اور ایک دوسروں کو جو ہے تھپڑ برسا دی گئی, جبکہ کرسیاں بھی ماری ہیں. اور یہ اس وقت ہوا جب وہاں پہ ایم این اے رانا محمود الحسن اور سینئر جو رہنما ہے ضلعی کوآرڈینیٹر زاہد گیلانی وہ بھی یہاں پر موجود تھے اور جو امیدوار تھے جس میں ضلعی کوآرڈینیٹر ہیں مختلف محکموں کے جس میں طارق رشید, جلال بٹ اور یہ لوگ موجود تھے. ان کی موجودگی میں یہاں پر یہ تصادم ہوا اور وہ ایک دوسرے کے بلکہ بعد میں یہ بھی ہوا کہ جو دونوں گروپوں کے جو سربراہ ہیں جس میں جو ہاشمی گروپ تھا وہاں پر ان کی نمائندگی طارق رشید کر لیتے اور اس طرح رانا محمود الحسن اپنے گروپ کی سربراہی کرتے تو ان دونوں کے درمیان میں بھی آپس میں کافی طلب کلامی ہوگی. تو یہ اجلاس جو ہے بغیر کسی فیصلے کے جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے. اسی طرح یہ مسلم لیگ نون کے جو مختلف تنظیمی اجلاس ہوتے رہتے ہیں ان میں اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ جو دو گروپ ہیں وہاں پر بڑی واضح چیز میں موجود ہوتے ہیں اور آج جو گروپ کا جو اجلاس ہوا تھا وہاں پر یہ تصادم کی صورتحال اس لیے پیدا ہوئی کہ دونوں گروپوں کی طرف سے نان ممبر جو لوگ جو اس اجلاس میں نہیں آنا نہیں چاہیے تھا وہ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے جنہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کی اور وہاں پر کرسیوں کا تصادم کرسیوں کے ذریعے شروع ہوا اور پھر اوپر مارے گئے, ایک دوسرے کو گالم گلوچ کی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ تصادم جاری ہونے کے بعد جو ہے یہ اجلاس جو ہے کسی فیصلے
फैसले किए बगैर जो है मनसूख कर दिया गया। ये वो मनाजिर अभी आप देखेंगे कुछ देर में, पहले भी आप देख चुके हैं कि यहाँ से तसादुम शुरू होता है, ये कारकुन दोनों जानिब से खड़े हो चुके हैं और ये एक कारकुन जो है वो उतर के उसने जाकर दूसरी जानिब खड़े लोगों को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, पीछे से कुर्सी आन पड़ी यहाँ पर खड़े लोगों पर, बरसाई गई थप्पड़ भी। अच्छा शरीफ ये बताएगा कि ये सारी सूरत इतनी बिगड़ती गई, किसी सीनियर रहनुमा ने कोशिश नहीं की कि इसको सुधारा जाए सूरत हाल को? जी जैसे ये इख्तिलाफ आज हो रहा था तो ये ये पहले से की जा रही थी यहाँ पर तसादुम यहाँ पर होगा, और लेकिन इस सवाल को कोई इंतजाम नहीं किया गया था। जो दोनों सरबराह हैं वो उन हवाले से भी उन्होंने किसी किस्म का कोई रूल इसमें नहीं प्ले किया, ना उन्होंने कारकुनों को रोका। हाँ उस वक्त कारकुनों को जो रोका गया जब वो जो बात है इख्तियार से बाहर हो गई और तसादुम की जब सूरत हाल हो चुकी तो उसके बाद जो है वो जो सीनियर लोग बैठे हुए थे उन्होंने आके जो है लोगों को छुड़ाया, जिसके बाद जो है वो ना खुशगवार वाकई नहीं पेश है। लेकिन इसमें ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ी देर बाद जो है कदम के बाद शायद यहाँ पर जो है वो असला वगैरह के साथ भी फायरिंग वगैरह की जाए, क्योंकि दोनों ग्रुपों के जो लोग हैं वो मुसल्लह गाड़ियों में भी मौजूद थे, जिनको फौरी तौर पर वहाँ के लोगों ने रिमूव कर दिया कि इससे पहले कि किसी और तसादुम की सूरत हाल पैदा हो, उन लोगों को वहाँ पे जो सीनियर लोग थे उन्होंने वहाँ से भगा दिया। और यानी शरीफ मतलब ये हुआ कि एक ही जिले में मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के आपस में ही दो धड़े हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये शुरू से जब से मुल्तान में ये जवेद हाशमी साहब जो है यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं उसके बाद ही दो ग्रुप मौजूद है, जिसमें एक ग्रुप जो है जिनकी सरबराही MNA राना महमूद हसन करते हैं जो कि वज़ीर आला पंजाब के एडवाइजर भी हैं, एक उनका सरबराही में ग्रुप चल रहा है, एक जवेद हाशमी की सरबराही में ग्रुप चल रहा है। ये दोनों के दरमियान जो है ये इख्तिलाफ कि सीनियर क़यादत तक ये बात पहुंची है, इनकी लड़ाई झगड़े की खबर पहुंची है? जैसे खत्म हुआ है तो हाशमी ग्रुप है उन्होंने जवेद हाशमी को ये सारी जो है इत्तला पहुंचा दी थी, और जो जिला कोऑर्डिनेटर है उन्होंने भी इत्तला जो है वो अपने पंजाब लेवल के जो लोग हैं उन तक पहुंचा दिए, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला है, ना ही इसके हवाले से किसी किस्म को कोई उनको आपस में ये बताया गया कि इनकी परवरिश की गई, कुछ नहीं हुआ। दोनों लड़ने के बाद जो है वो दोबारा के बाद वापस चले गए। ये अभी आपने एक बार फिर से देखा किस तरह से कुर्सी ऊपर से फेंकी गई और वो वहाँ पर लोग कारकुन मौजूद थे जिनके ऊपर आके गिरी, थप्पड़ मारे गए और जो गालिम गलोच है वो भी यहाँ पर उसका आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। तो शरीफ ये बताएं कि जावेद हाशमी जो हैं वो कहीं यहाँ पर मौजूद थे या उनकी गैर मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ? नहीं, यहाँ जवेद हाशमी नहीं थे, उनकी नुमाइंदगी जो जिला कोऑर्डिनेटर हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, तारिक रशीद वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, और वो खुद भी जो तारिक रशीद है जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे वो खुद भी जिलाई सदर के लिए उम्मीदवार थे, इसीलिए जो दूसरा वाला ग्रुप था उनकी तरफ से भी उम्मीदवार थे। तो उन दोनों के दरमियान जब ये इख्तिलाफ बढ़ा के उनका सदर होना चाहिए, दूसरे ग्रुप ने कहा उनका सदर होना चाहिए, तो वहाँ पे जो है बात बड़ी होता है। ये लड़ाई झगड़े की जो शुरुआत है किस ग्रुप की जानिब से हुई? जी ये पहल जो है ये मैंने बताया जैसे दोनों ग्रुप आपस में आमने सामने बैठे तो तसादुम तो उसकी बात शुरू हुआ, गालम गलोच और तेज आवाज में बुलंद आवाज में जो बातें आनी शुरू हो गई तो सिर्फ इंतजाम तलाशी शुरू हो गई। लेकिन जो राना ग्रुप है उन्होंने पहल की और वहाँ पर जो दूसरा ग्रुप था हाशमी ग्रुप, वहाँ पर एक नौजवान है जिसको अभी सिटी में एक ओहदा भी दिया गया है, मुख्तलिफ कमेटी के चेयरमैन भी बनाए, वहाँ की तरफ से जो है इमरान लियाकत पर जो है राना ग्रुप की तरफ से जो है पहला थप्पड़ जो है वो मारा गया, जिसके बाद दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के लोगों को जो है कारकुनों को जो जल्दों किया और कत्ल का निशाना। ये शरीफ हमारे साथ रहेगा, ये देखिएगा अभी किस तरह से ये कारकुन उठा दूसरी जानिब गया और जाकर थप्पड़ों का इस्तेमाल किया और पीछे से उसके साथी ने कुर्सी फेंकी मुखालिफ ग्रुप पर, जिसके बाद यहाँ पर मैदान जंग जो है वो देखने को मिला और दूसरे पर हाथ उठाए गए, गालियाँ दी गई, बदतरीन यहाँ पर बदनज़मी जो है वो देखने को मिली। सर्किट हाउस मुल्तान में जहाँ पर मुस्लिम लीग नून का इजलास हो रहा था, मकसद ये था कि ज़िले सदर की नामजदगी की जाए। दो धड़े हैं, राना महमूद हसन MNA जो कि CM के एडवाइज़र हैं मियां शहबाज शरीफ के, और दूसरा धड़ा जिसका ताल्लुक मखदूम जावेद हाशमी सीनियर रहनुमा उनके हिमायती हैं। तो अब ये बताएं कि शरीफ अभी क्या सूरत हाल है, क्या ये लोग जहाँ से सर्किट हाउस से जा चुके मामला थम गया? जी अभी ये लोग सर्किट हाउस से जा चुके हैं तो जो है वो मनसूख कर दिया गया है, उसके बाद भी लोग यहाँ से चलेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ क्योंकि ये दोनों ग्रुप बहुत ज़्यादा जो है माने जाते हैं, उन दोनों के आपस में बहुत ज़्यादा मुखालफत है, और जो इमरान लियाकत था ये पहले राना महमूद हसन के ग्रुप में ही शामिल था, लेकिन कुछ अर्से से जो है हाशमी ग्रुप में शामिल हुआ तो उसके बाद ये जो है आदम की तरफ बढ़ती रही। और यहाँ पर भी ये फादर इमरान लियाकत से पहले क्योंकि स्टूडेंट ग्रुप की है, स्टूडेंट लीडर है ये वहाँ पे, तो ये जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है
दोनों ग्रुपों के दरमियान कोई मुसल्लत तसादम भी हो सकता है। अच्छा शरीफ, आज से एक हफ्ता पहले जब इम्तियाज सफदर बड़ाइच पहुंचे थे मुल्तान, तब भी यही सूरत हाल देखने को मिली थी, इस तरह तसादम हुआ था। तो यहाँ पर जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका मामला तकरीबन एक जैसा है, मुख्तलिफ धड़ों में बटी हुई हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही मुख्तलिफ घरों में लोग बटे हुए हैं, सियासी जमातें भी बटी हुई हैं, फिर आगे जो उनके जो स्टूडेंट लीडर्स हैं वो भी बटे हुए हैं। और यहाँ पे लोगों का जो सबसे बड़ा इल्जाम यही होता है कि जो कारकुन है वो किसका रहता है, वो इग्नोर हो जाता है, उसको कोई जो ऊपर के लेवल के जो ओहदे होते हैं वहाँ पर उनको नुमाइंदगी नहीं दी जाती है। जो सियासी लोग हैं वो अपने ही जो लोग हैं, अपने करीबी लोग हैं, उनको ही जो है जिलाई ओहदे पे, सिटी के ओहदे पे और पंजाब पे। जी हाँ, बहुत शुक्रिया शरीफ भाई आपका। पार्टी के कारकुन अगर इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो सूरत कैसे संभलने में आती है। रावलपिंडी के इलाके ढोग इलाही बख्श में फायरिंग से एक शख्स की हलाकत के बाद मुखालिफ गिरोह के मकानात को आग लगा दी गई। मौके पर मौजूद पुलिस खामोश तमाशाई बनी देखती रही। मजीद बता रहे हैं ईसा नकवी। ढोक इलाही बख्श में चौधरी और खान ग्रुप्स में झगड़ा खासे अरसे से जारी है। गुज़श्ता बार चौधरी ग्रुप ने खान ग्रुप के काला खान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इस वकूए में चौधरी ग्रुप के चौधरी शौकत और उनके साथियों को जेल भेज दिया गया। मकतूल काला खान के भाई नवाज खान और दोस्त जल्लू खान कत्ल के चश्मदीद गवाह भी हैं। पीर के सुबह अदालत में गवाही देने की गर्ज से रवाना हुए तो नवाज खान को चौधरी ग्रुप के लोगों ने घर के करीब फायरिंग करके हलाक कर दिया, जबकि जल्लू खान को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शालकोट से आए तलंगे हैं, इन्होंने ये जायदाद देखी है, पहले उसको तंग करते रहे, फिर उसको बेटे को मारा है इन्होंने, फिर अभी दूसरे बेटे को मारा है। तनाज़ा था लेकिन इन लोगों ने बहुत बड़ा इशू बना लिया। उस वजह से पहले हमारे 3 कत्ल हो चुके हैं। हम गवर्नमेंट के पास भी जाते रहे, हमने काफी अपीलें भी की हैं, लेकिन आज सुबह ये जब जा रहे थे शातों के लिए तो रास्ते में इन्होंने आके हमला कर दिया। मकतूल नवाज खान की लाश घर आई तो उनके अजीजो अकारिब और मुश्तइल घर वालों ने गली के दूसरे किनारे पर वाक़े चौधरी ग्रुप के 3 घरों और उनसे मुत्तसिल दुकानों के ताले तोड़कर सामान बाहर फेंककर घरों और सामान को आग लगा दी। मुश्तइल अफराद ने रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड के अमले को आग बुझाने से भी रोक दिया, जबकि पुलिस जो सुबह से वारदात के बाइस जाए वकुआ पर मौजूद खामोश खड़ी तमाशा देखती रही। क्योंकि ये ख्वातीन थी, लड़कीन थे, थोड़ा सा इश्तियाल था उनका, तो उसमें भी हमने जो है ना इश्तियाल को रोकने के लिए अभी इसको आग बुझाने की अभी शुरू कर रहे हैं। 2.5 घंटों की कोशिश के बाद पुलिस मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में कामयाब हुई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। नजर आतिश किए गए घरों में लगी आग बुझाने के अमल के दौरान पुलिस मुश्तइल मुजाहिरीन के सामने बेबस नजर आई, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी को जाहिर करता है। बात करते हैं पंजाब असम्बली की, जिसमें हुकूमती अरकान ने हाजिरी रजिस्टर ऐवान में रखने पर एहतजाज करते हुए स्पीकर और वजीर कानून के फैसले से बगावत कर दी, हाजिरी लगाने से इनकार कर दिया। अरकान का कहना है कि इस तरह हाजिरी लगाना उनके मुंह पर तमाचा है। हमारे मुंह पर गाली है, तमाचा पंजाब असेंबली का मंजर आज भी कल जैसा ही था। ये क्या हो रहा है भाई? असेंबली में आओ, रजिस्टर उठाओ और जल्दी से हाजिरी लगाओ। कौन आया कौन नहीं आया, अब ये नौबत आ पहुंची है कि स्पीकर को अपने अरकान पर एतबार ही नहीं, वो एतबार करें भी कैसे। असेंबली में न आने वालों की हाजिरियां जो लग रही थी, अरकान असेंबली जब अच्छे बच्चों की तरह हाजिरियां लगा रहे थे तो वजीर कानून पंजाब इस मंजर को देखकर चुप न रह सके। कहने लगे रजिस्टर अंदर रखने की बरकत है, वो चेहरे भी देखने को नसीब हो रहे हैं जो गुज़िश्ता 3 बरस से नहीं देखे थे। हाजिरी के मामले पर मस्ती खेल को फिर मस्ती सूझी और असेंबली को सर पर उठा लिया। ये हमारी बेइज्जती है, ये हमारे मुंह पे गाली है, ये हमारे मुंह पे तमाचा है। हाजिरियां लगाने के बाद कई अरकान को याद आया ये तो उनकी शान के खिलाफ है। स्कूल और कॉलेजेस में कभी हाजिर जनाब नहीं कहा तो यहाँ क्यों? हाजिर जनाब, हाजिर जनाब, हाजिर जनाब। बच्चों की तरह वहाँ मतलब हाजिर रजिस्टर रख के सबके सामने हाजिर लगवाना, वो हमारे ऊपर एक इस तरह की बात है कि जी अदम एतमाद वाली बात है और हम इस चीज को कबूल नहीं करेंगे। अब सुनिए असेंबली वालों का अगला कारनामा, कौन सी दौलत किस तरह अपनी जेबों में डाली जा रही है। असेंबली अजलास में हर अरकान को 2550 रुपए योमिया अलाउंस, सरकारी रिहाइश, जबकि लाहौर से बाहर आने वालों को 5 रुपए फी किलोमीटर के हिसाब से सब्सिडी जाता है। इस हिसाब से हर रुकन असेंबली पर योमिया 4000 से 5000 रुपए तक खर्च किए जाते हैं। वाह रे अवामी नुमाइंदे, इजलास में भी नहीं आए और अवाम की दौलत भी हड़प।
PADA جو ہے وہ حاضری سے منسلک ہے، اور جو آج میں نے وہ کنفرنٹ کیا ہے اس شیٹ کو اور اس وقت کی حاضری کو، تو مجھے تو ایسا محسوس ہوا ہے کہ کچھ اہلکاران جو ہیں وہ لالچ کی بنیاد کے اوپر اس چیز میں ملوث ہیں۔ قانون بنانے والے ان عوامی نمائندوں کو خود قانون کا سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون ملتان کے میڈیا کوارڈینیٹر عمران لیاقت نے کہا ہے کہ رکن قومی اسمبلی رانا محمود الحسن نے ان پر حملہ کر کے پارٹی کو بدنام کیا ہے۔ ملتان کے مقامی ہوٹل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران لیاقت نے کہا کہ سرکٹ ہاؤس میں رانا محمود الحسن کے کارندوں کا ان پر حملہ مشرف دور کی سختیوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس واقعے سے مسلم لیگ نون کی جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ ملتان کے ارکان اسمبلی کارکنوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ پارٹی کو سرمایہ کاروں کی جماعت بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ قیادت واقعے کا نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے دیرینہ کارکن کامریڈ قادر بخش لاکھو نے پارٹی قیادت سے دل برداشتہ ہو کر علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے اور نیوز کانفرنس میں نواز لیگ کے جھنڈے کی قمیض اور ٹوپی اتار دی۔ حیدرآباد پریس کلب میں قادر بخش لاکھو نے کہا کہ انہوں نے 20 سال پہلے نواز لیگ میں شامل ہو کر پارٹی کا پیغام گھر گھر پہنچایا، قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی، مشرف کے آمرانہ دور میں بھی وفاداری قائم رکھی اور پارٹی سے عزت کے سوا کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن انہیں نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے نواز لیگ سندھ کے آرگنائزر سلیم ضیاء پر پارٹی میں گروپ بندی اور اقربا پروری کا الزام بھی عائد کیا۔